Hello everyone. Today's topic is posterior triangle of neck. First of all, neck limitations of neck. Neck is a cylindrical region connecting head and trunk. Extent upper limit is from lower border of mandible up to the angle of mandible to and from angle of mandible to mastoid process imaginary line draw करेंगे and from mastoid process to superior nuchal lines and from superior nuchal lines to external occipital protuberance. So this is the upper limit above mandible to imaginary line up to mastoid process and from mastoid process to superior nuchal lines and from superior nuchal line to external occipital protuberance. Now lower limit. Lower limit is suprasternal notch. Here is suprasternal notch to upper surface of clavicle. This is clavicle, and from clavicle to acromion process of scapula, and from acromion process, this is the acromion process to C7 vertebrae. And posteriorly it extends from external occipital protuberance to C7 vertebrae and anteriorly from middle of the base of the mandible to T2 level, that is the suprasternal notch. यहाँ पे ये C1 के ट्रांसवर्स प्रोसेस को भी क्रॉस करती है इमेजिनरी लाइन एंगल ऑफ मैंडिबल टू mastoid प्रोसेस. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ नेक. नाउ front of neck is divided by sternocleidomastoid muscle into two triangles, anterior triangle and posterior triangle. So sternocleidomastoid is key muscle of neck. It divides front of neck into anterior triangle. This is the anterior triangle and this is posterior triangle. First of all, boundaries of posterior triangle of the neck. Anteriorly, this is the posterior triangle, sternocleidomastoid muscle. This is the key muscle. This divide the front of the neck into anterior triangle and posterior triangle. Now sternocleidomastoid muscle बाउंड्री, इन बाउंड्री अगर हम देखें पोस्टीरियर ट्रायंगल की तो posterior border of sternocleidomastoid muscle forms anterior boundary of posterior triangle of neck, and posterior boundary is formed by anterior border of trapezius muscle. Base is formed by middle 1/3. This is clavicle, whole clavicle from here to here. Middle 1/3 form the base of mandible. So anterior boundary is formed by posterior border of border, not surface, posterior border of sternocleidomastoid, and posterior boundary of posterior triangle is formed by anterior border of trapezius muscle, and base of the triangle is formed by middle 1/3 of clavicle. Apex is formed by superior nuchal lines. Apex is formed by superior nuchal lines. Apex is truncated. Apex is truncated, not sharp.
नाउ एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ SCM, पोस्टीरियर बाउंड्री होगी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस, बेस मिडिल 1/3 ऑफ clavicle, apex superior nuchal lines. बचा रूफ एंड फ्लोर। कौन सा पोर्शन रूफ है, किसको फ्लोर बोलेंगे, ये ज़रूरी है। जब डिसेक्शन करते हैं, लैंडमार्क्स आइडेंटिफाई कर लिए, पोस्टीरियर ट्रायंगल का डिसेक्शन कर रहे हैं, तब जब हम इंसिजन देंगे, जो सबसे पहले जो चीज़ दिखाई देगी वो रूफ ऑफ ट्रायंगल होगी। ठीक है, तो रूफ किससे बनेगी? रूफ इज फॉर्म बाय, सबसे पहले क्या दिख रहा है, स्किन, स्किन के बाद में आएगा सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, फेशिया क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में सबक्यूटेनियस मसल है प्लेटिज्मा, इसमें है प्लेटिज्मा मसल, ठीक है। देन रूफ के अंदर क्या आएगा, डीप फेशिया, डीप फेशिया, डीप फेशिया, डीप फेशिया ऑफ नेक अलग अलग टाइप्स का है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे दैट इज़ द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। और ये जो ये रूफ है, दिस इज इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। और ये जितने भी नर्व्स दिख रहे हैं ये सब क्यूटेनियस नर्व्स हैं। क्यूटेनियस नर्व्स सब सर्वाइकल प्लेक्सस से आ रहे हैं। सर्वाइकल प्लेक्सस से आने के बाद पोस्टीरियर ट्रायंगल में आएंगे, पोस्टीरियर ट्रायंगल का कंटेंट फॉर्म करेंगे, और कंटेंट फॉर्म करने के बाद अल्टीमेटली उनको स्किन को सप्लाई करना है, क्यूटेनियस है क्योंकि ये, तो स्किन को सप्लाई करना है, इसलिए वो पियर्स करेंगे डीप सर्वाइकल फेशिया को, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया को, ठीक है। नाउ देख लिया, तो रूफ किस किस से बन रही थी, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग प्लेटिज्मा मसल and investing layer of deep cervical fascia. Investing layer of deep cervical fascia is pierced by cutaneous nerves. Now floor. Floor is formed by number of muscles. Floor important है. Floor from above downwards muscle देखेंगे तो floor is formed by semispinalis capitis, सेमीस्पाइनलिस कैपिटस मसल। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको, वर्टिकल रनिंग फाइबर्स हैं, वर्टिकल फाइबर्स हैं, एपेक्स के पास में दिखाई देती है, वर्टिकल रनिंग फाइबर्स हैं, सेमीस्पाइनलिस कैपिटस मसल। देन सेकेंड मसल इज स्प्लीनियस कैपिटस, सेकेंड मसल स्प्लीनियस बैंडेज लाइक मसल है, स्प्लीनियस कैपिटस। देन लिवेटर स्कैपुला, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड, कैपिटस मीन्स हेड रीजन, बैक ऑफ नेक में, यहाँ हेड के पास में यहाँ की मसल्स हैं जो पोस्टीरियर ट्रायंगल के फ्लोर में हमें दिखाई दे रही हैं। देन लिवेटर स्कैपुली, लिवेटर स्कैपुली स्कैपुला की मसल है। एंड फोर्थ स्क्लेनियस मीडियस, and fifth is scalenus posterior muscle. Scalenus muscle 3 मसल होती है, मीडियस, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। एंटीरियर कभी कभी दिखाई देती है ओकेजनली फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल में, अदरवाइज नहीं दिखाई देती है। Now posterior triangle is further divided into two parts, occipital triangle and supraclavicular triangle or subclavius triangle. Now अभी फ्रंट ऑफ नेक को डिवाइड किया टू पार्ट्स में, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोमिया। तो अब पोस्टीरियर ट्रायंगल को कौन डिवाइड कर रहा है, पोस्टीरियर ट्रायंगल को डिवाइड कर रहा है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल, inferior belly of omohyoid muscle divides posterior triangle into two. Further
two triangles, that is the occipital triangle and supraclavicular triangle. Omo means scapula. Omo means scapula. हायोइड बोन है नेक रीजन के अंदर C3 लेवल पे. स्कैपुला ओमो है. स्कैपुला से हायोइड बोन तक एक मसल जा रही है जिसकी दो बेली है, सुपीरियर बेली एंड इंफीरियर बेली. तो इंफीरियर बेली जो है वो स्कैपुला से ट्रेपेजियस मसल जो पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही है पोस्टीरियर ट्रायंगल की, उसके नीचे से स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के नीचे उसका टेंडन फॉर्मेशन होता है, वहाँ तक जाता है. और उसके बाद में सुपीरियर बेली हायोइड बोन से SCM के नीचे तक आती है. और ये इस तरीके से एक मसल है और ये डिवाइड करेगी. ये स्कैपुला है, तो स्कैपुला से ओरिजिनेट हुई और ये इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के नीचे यहाँ पे इस तरीके से है ना. और ये हायोइड बोन है, यहाँ से इसकी सुपीरियर बेली आ रही है. ये दोनों, तो ये जो मसल है ये डिवाइड कर देगी पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक को टू पार्ट्स में. छोटा जो है सबक्लेवियन ट्रायंगल या सुप्राक्लेविकुलर अबव द क्लेविकल. सबक्लेवियन ट्रायंगल इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी आती है इसके कंटेंट के अंदर. ऑसिपिटल ट्रायंगल, लार्ज जो ट्रायंगल बनता है उसे हम कहते हैं ऑसिपिटल ट्रायंगल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑसिपिटल ट्रायंगल, बाउंड्रीज ऑफ ऑसिपिटल ट्रायंगल सेम बाउंड्रीज है. एंटीरियरली वही पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, पोस्टीरियरली क्या हो जाएगा एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस. बट बेस में अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बेस इज फॉर्म बाय इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल. बेस इज फॉर्म बाय इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल. रूफ सेम, skin, superficial fascia containing platysma, then investing layer of deep cervical fascia. Floor again जो ये जितनी भी मसल्स हमने पढ़ी जो फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल में थी वही ऑसिपिटल ट्रायंगल में है. सेम पार्ट ऑफ सेमीस्पाइनलिस कैपिटस, splenius capitis, levator scapulae and scalenus medius and posterior muscle. Now contents of occipital triangle. सबसे important content है spinal part of accessory nerve. accessory nerve कौन सी nerve होती है, cranial nerve 11. cranial nerve 11 have two parts, spinal एंड क्रेनियल. स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व जो है वो हमें पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर दिखाई देता है. स्पाइनल पार्ट ऑफ cranial nerve 11 appears in the posterior triangle deep to midpoint of posterior border of sternocleidomastoid, है ना. डिसेक्शन में जब हम देखते हैं कनिंगम में इसका डायग्राम भी है सेम ऐसे ही. दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड. तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व है, तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड का मिड पॉइंट मार्क करेंगे. मिड पॉइंट वहाँ पे जो हमें नर्व दिखाई दे रही है वो है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व. सेकेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नर्व इज हुक्ड सुपरफिशियली अपवर्ड बाय लेसर ऑसिपिटल नर्व. ये देखो इस तरीके से ये एक्सेसरी नर्व है, हुक्ड अपवर्ड सुपरफिशियली बाय ये है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, और हुक्ड अपवर्ड बाय लेसर ऑसिपिटल नर्व. इस तरीके से
तो और ये इसका पॉइंट क्या है, ये अप्रोक्सीमेटली मिड पॉइंट ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड। ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर हम कभी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के मिड पॉइंट के पास में कभी इंसिजन देते हैं तो एक्सेसरी नर्व के कट होने के चांसेस रहते हैं, तो केयरफुली हमें इंसिजन देना होता है। नाउ एक्सेसरी नर्व फर्दर डिवाइड्स द पोस्टीरियर ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल, दैट इज द केयरफ्री ट्रायंगल। अब एक्सेसरी नर्व फर्दर डिवाइड कर रही है ऑसिपिटल ट्रायंगल को टू ट्रायंगल्स के अंदर। ये ऑसिपिटल ट्रायंगल है यहाँ तक, दिस इज अपर केयरफ्री, बिलो केयरफुल ट्रायंगल, केयरफुल। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, केयरफ्री एंड केयरफुल ट्रायंगल। Now second content क्या, फर्स्ट कंटेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ occipital triangle is spinal part of accessory nerve. Second content क्या है, third and fourth cervical nerves. These are the muscular branches parallel with the accessory nerves. And एक और पॉइंट, स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व कौन सी मसल के ऊपर रन करेगा, जिस मसल के ऊपर हमें स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व दिखाई दे रही है वो लेवेटर स्कैपुली मसल है, इससे हम मसल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल नर्व्स भी पैरेलल टू एक्सेसरी नर्व है और लेवेटर स्कैपुली के ऊपर आ रही है। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इट इज प्रैक्टिकली प्लास्टर्ड रहती है टू इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया एट द रूफ ऑफ द ट्रायंगल। ये लेवेटर स्कैपुली मसल है, मिड पॉइंट ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड के पोस्टीरियर बॉर्डर का। ये अप्रॉक्सीमेटली इसके ऊपर जो डीप फेस है यहाँ पे एक नर्व दिखाई देगी जो यहाँ से आएगी और ट्रेपेजियस के नीचे चली जाएगी। स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व मोटर सप्लाई देगी एससीएम और ट्रेपेजियस को, इसलिए इसके यहाँ से आई लेवेटर स्कैपुले के ऊपर रन करेगी और ट्रेपेजियस के नीचे चली जाएगी ट्रेपेजियस को सप्लाई देने के लिए। फिर सेम इसी के पैरेलल हम केयरफुल ट्रायंगल में आ रहे हैं। केयर फ्री ट्रायंगल के अंदर सिर्फ हमारे पास लेसर ऑसिपिटल नर्व है, क्यूटेनियस नर्व। फिर इसके बाद हमारे पास दो मस्कुलर ब्रांचेस और आएंगी जो इसके पैरेलल हमें दिखाई देंगी, वो है थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल C3 C4। देन नेक्स्ट कंटेंट आएगा हमारे पास डोर्सल स्कैपुलर नर्व। ये C5 के फाइबर्स हैं, C5 रूट से फाइबर्स हैं। पोस्टीरियर ट्रायंगल के ये अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस दिखाई देता है हमें, अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस ये कंटेंट है और ये ट्रंक है और रूट से नर्व आती है, रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है ना। C5 की जो रूट है, रूट से आ रही है डोर्सल स्कैपुलर नर्व, C5 इसकी रूट वैल्यू है। देन अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, अपर ट्रंक किससे बनता है, ब्रेकियल प्लेक्सस में हम पढ़ेंगे अपर मिडल एंड लोअर ट्रंक रहते हैं, तो अपर ट्रंक इज फॉर्म बाय C5 एंड C6 और अपर ट्रंक इज वल्नरेबल टू एक्सटर्नल इंजरी और इसको हम अर्ब्स पॉइंट भी कहते हैं, अर्ब्स पॉइंट। डोर्सल स्कैपुलर नर्व रूट से आ रही है ना। तो जब हम ये ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ते हैं तब ब्रेकियल प्लेक्सस मीन्स ब्रेकियम मीन्स आर्म है ना, आर्म को सप्लाई करने के लिए सब नर्व्स, सब स्पाइनल नर्व्स प्लेक्सस बनाएंगे और प्लेक्सस बनाने के बाद नीचे जाएंगी। तो पहले नर्व रूट होती है, रूट से ट्रंक, ट्रंक से डिवीजन, इस तरीके से आगे नर्व जाती है। तो रूट से C5 के रूट से हम ब्रेकियल प्लेक्सस के C5 के रूट से हमारे पास क्या आ रहा है, डोर्सल स्कैपुलर नर्व
और अपर ट्रंक जो C5 और C6 रूट से बन रहा है वो भी ब्रेकियल प्लेक्सस का, वो भी दिखता है किसके अंदर, ऑसिपिटल ट्राइंगल के अंदर। नेक्स्ट इज 4 क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस। क्यूटेनियस ब्रांचेस जो सप्लाई करेंगे सर्वाइकल प्लेक्सस से आ रही है, ब्रेकियल प्लेक्सस और सर्वाइकल प्लेक्सस है ना, सर्वाइकल प्लेक्सस से आ रही है। डोर्सल स्कैपुलर नर्व और अपर ट्रंक ये दोनों ब्रेकियल प्लेक्सस के हैं। सर्वाइकल प्लेक्सस जो नेक रीजन का है, सर्वाइकल पार्ट का, वहाँ के जो प्लेक्सस है जो क्यूटेनियस नर्व्स जो स्किन को सप्लाई करेंगी वो आ रही है। लेसर ऑसिपिटल नर्व, रूट वैल्यू C2, ग्रेटर ऑरिकुलर C2 C3, ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व, सुप्रा क्लेविकुलर। नेक्स्ट कंटेंट इज सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी। सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक। जो नेक रीजन है, नेक रीजन को दो ही आर्टरी सप्लाई करती है बेसिकली, थायरोसर्वाइकल ट्रंक का जो सबक्लेवियन से आ रहा है और दूसरा एक्सटर्नल कैरोटिड है ना, कैरोटिड की ब्रांच। तो कैरोटिड और ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक का, एक्सटर्नल कैरोटिड और थायरोसर्वाइकल ट्रंक पूरा नेक रीजन को सप्लाई करता है। तो इसका सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी ब्रांच आ रही है और रेयरली समटाइम्स हम ऑसिपिटल आर्टरी देखते हैं। तो ये ऑसिपिटल आर्टरी है, ये स्पाइनल पार्ट, स्पाइनल नर्व है, क्रेनियल नर्व 11 का स्पाइनल पार्ट है। देन थर्ड एंड फोर्थ इसके जस्ट पैरेलल आ रही है इस तरीके से। ये जो इसको लूप करके ऊपर की तरफ जा रही है लेसर ऑसिपिटल नर्व है, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे ट्रंक है, अपर ट्रंक ब्रेकियल प्लेक्सिस का, और ब्रेकियल प्लेक्सिस के C5 रूट से हमारे पास डोर्सल स्कैपुलर नर्व आ रही है। ये सब हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑसिपिटल ट्रायंगल के अंदर। जो क्यूटेनियस नर्व्स जो हैं वो ये ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ये इधर ऑरिकल के आसपास के स्किन को सप्लाई करेगा। ट्रांसवर्स सर्वाइकल ये इधर नेक रीजन को इधर सप्लाई करेगा, है ना। सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स ये नीचे इधर क्लेविकल और ये वाले पोर्शन को सप्लाई करती है। नाउ सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल, a supraclavicular triangle also termed as subclavian triangle, boundaries above। अब जो ऑसिपिटल ट्रायंगल का बेस था वो इसकी अपर लिमिट है, दैट इज द इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल बिलो मिडिल 1/3 ऑफ क्लेविकल। इन फ्रंट सेम posterior border of sternocleidomastoid। Roof is formed by same skin, superficial fascia, platysma, investing layer of deep cervical fascia, which is pierced by 3 branches of supraclavicular nerve, that is lateral, middle and medial. Floor, floor is important। फ्लोर के अंदर क्या क्या आएगा, floor is formed by outer border of first rib and first digitation of serratus anterior muscle। Floor is formed by outer border of first rib and first digitation of serratus anterior muscle। Now contents, most important content is subclavian artery, है ना। Subclavian artery extend downward and laterally from the lateral border of the scaneus anterior muscle जो इसके फ्लोर में है to outer border of the first where it enters into the apex of the axilla and it is continued as axillary artery। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि
जस्ट स्टडी करने के लिए हमने ट्राइंगल, पोस्टीरियर ट्राइंगल और एक्सिला को डिवाइड कर दिया है एनाटॉमिकली, बट एज सच कोई डिवीजन नहीं है। जो भी कंटेंट हम ये ब्रेकियल प्लेक्सस, सबक्लेवियन आर्टरी का कंटिन्यूशन, एक्सिलरी आर्टरी, ये सब पढ़ रहे हैं, ये यहाँ नाम उसका सबक्लेवियन है फर्स्ट बॉर्डर तक, देन उसी आर्टरी को हमने एक्सिलरी आर्टरी बोल दिया, और वही एक्सिलरी आर्टरी यहाँ से एक्सिला में जाएगी और एक्सिला से हैंड के अंदर जाएगी। सेम यहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सिस का रूट, ट्रंक आता है पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर, तो ट्रंक आएंगे, देन उसका डिवीजन, ब्रांचेस, ये सब डिवीजन जो है वो एक्सिला के अंदर आ जाएगा, ब्रांचेस जो है इधर अपर आर्म में चली जाएंगी। ठीक है, नाउ ब्रांचेस जो फर्स्ट पार्ट, उसके बाद में ये आ गई थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ये इसका कंटेंट है। नेक्स्ट इज सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन नॉट अपीयर इन द ट्रायंगल, क्योंकि ये बिहाइंड द क्लैविकल, इट लाइज बिहाइंड द क्लैविकल, नॉट अपीयर इन द ट्रायंगल, तो कंटेंट नहीं है सबक्लेवियन वेन इसका। सबक्लेवियन आर्टरी इसका कंटेंट है। नाउ टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन फॉर्मेशन हुई, उसका टर्मिनल पार्ट जब उसको ओपन करना है सबक्लेवियन वेन के अंदर, तो उसका वो पियर्स करेगी डीप फेशिया को, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया को सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन करने के लिए। तो वो जो उसका टर्मिनल पोर्शन है वो हमें दिखाई देगा सुप्राक्लैविकुलर ट्रायंगल के अंदर। ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ऑसिपिटल ट्रायंगल में सिर्फ अपर ट्रंक दिखाई दे रहा है, इधर हमें अपर, मिडल एंड लोअर ट्रंक तीनों दिखाई देते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के। और ट्रंक से जो ब्रांचेस आ रही हैं दैट इज द डोर्सल स्कैपुलर नर्व, ये रूट से आ रही है, एक्चुअली C5 रूट से आती है। लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो नीचे जाएगी, नर्व टू सबक्लेवियस एंड सुप्रा स्कैपुलर नर्व। नेक्स्ट जो कंटेंट है दैट इज द सुपरफिशियल सर्वाइकल, सुप्रा स्कैपुलर एंड डोर्सल स्कैपुलर आर्टरीज। नेक्स्ट कंटेंट इज पोस्टीरियो इंफीरियर ग्रुप ऑफ डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। तो सब क्लेवियन ट्रायंगल के क्या क्या कंटेंट हो गए? थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन इसका कंटेंट नहीं है, टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, तीनों ट्रंक अपर, मिडल एंड लोअर, एंड ब्रांचेस कौन कौन सी आ रही है? लॉन्ग थोरैसिक नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, आर्टरी कौन कौन सी है? सुपरफिशियल सर्वाइकल, सुप्रा स्कैपुलर, डोर्सल स्कैपुलर, ये सब सबक्लेवियन की ब्रांचेस आ रही हैं यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी की। एंड पोस्टीरियो इन्फीरियर ग्रुप ऑफ डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स का जो पोस्टीरियो इन्फीरियर ग्रुप है वो सबक्लेवियन ट्रायंगल के अंदर आता है। नाउ क्लिनिकल, अगर क्या बोलते हैं, ये जो पोस्टीरियो इन्फीरियर ग्रुप ऑफ डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व हो जाता है ना, एनलार्जमेंट हो जाता है इन्फीरियर ग्रुप का, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड का, तो लेफ्ट साइड में है ना, सिर्फ लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसको हम कहते हैं वर्चुअस नोड्स, है ना। कोई भी मैलिग्नेंट ग्रोथ है स्टमक की, टेस्टिस की, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की, तो जो लेफ्ट ग्रुप है, लेफ्ट साइड के अंदर इन पोस्टीरियो इन्फीरियर ग्रुप ऑफ डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स गेट एनलार्ज एंड दीज आर टर्म्ड एज वर्चुअस नोड्स। नाउ सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, जस्ट क्लिनिकल पॉइंट है, any obstruction of the subclavian artery close to its origin, तो अगर ओरिजिन के पास में सबक्लेवियन आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो ब्लड फ्लो ऑफ सम पार्ट ऑफ ब्रेन ड्यू टू हाइपोटेंशन इन द वर्टिब्रल आर्टरी डिस्टल टू द ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रेन क्या है, ब्लड कम हो जाएगा, तो वर्टिब्रल आर्टरी जो आगे
जो ब्लड है वो वर्टिब्रल आर्टरी के थ्रू डिस्टल पोर्शन से वो रेट्रोग्रेड मूव करेगा सबक्लेवियन आर्टरी में थ्रू दी वर्टिब्रल आर्टरी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। मतलब सबक्लेवियन जो आर्टरी है इसका जो जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, अगर वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये क्या कर रहा है, स्टील कर रहा है ब्लड फ्रॉम ब्रेन। वर्टिब्रल आर्टरी में जो ब्लड जा रहा था वो रेट्रोग्रेड मूव करेगा, क्योंकि सबक्लेवियन आर्टरी से क्या बोलते हैं, एक्सिलरी आर्टरी, और एक्सिलरी आर्टरी से ही सब हैंड को सप्लाई जा रहा है। तो अगर इधर ब्लड नहीं जाएगा तो जो ब्रेन को जो वर्टिब्रल आर्टरी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, तो वो जो ब्लड जा रहा था वो रेट्रोग्रेड मूव करेगा हैंड को सप्लाई करने के लिए। तो इसलिए इस सिंड्रोम का नाम है सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। थैंक यू।